Well, it was one of the very insightful speech I ever heard about the tax, honestly speaking. इतनी डिटेल प्रेजेंटेशन के बाद मेरे ख्याल से अब शायद टैक्स ही फाइल करना रह गया है और कुछ और लर्न करना जो है मेरे ख्याल से वो काफी हद तक हो चुका है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट वाज रियली अ वंडरफुल स्पीच. A very detailed and Thank very learned sort of presentation, Jamshed Saab. Thank you very much for your time. Meanwhile, Mr. Azim Hussain Siddiqui, one of our elected NC members and the chairman CPD committee, has joined us the session. Azim साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं. उनका एक अपना एक तारुफ अपनी जगह मौजूद है. सब उनको जानते हैं. आईसीएमए और सीएफ फ्रेटर्निटी दोनों के फेलो मेंबर हैं और एक सीनियर पार्टनर हैं जावेद जफर चार्टर अकाउंटेंट फर्म के. और अजीम साहब is having a vast experience in the tax practicing tax compliances. It's over to you, Azim Saab, for our wonderful notes on this session. जी, Azim Saab, it's over to you. अस्सलाम वालेकुम. Am I audible? Yes, Azim Saab, audible. We are very much audible. वालेकुम अस्सलाम. बहुत शुक्रिया कामरान, सबसे पहले तो आपका. और सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा जमशेद आपको. जमशेद, बहुत ज़बरदस्त आपकी कम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन, और आपने इसको जिस तरह से मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया था कि पहले आपने उसे थ्योरी बताई पूरी, फिर उसके बाद आपने हमें एक्सेल पे कैलकुलेशन का जो बताया, जो कि की होती है, क्योंकि Well, we are now heading towards a panel discussion. We have a session now, and we have a moderator, Mr. Farooq Ali Naveed, who is also a very senior member of ICMA. He was associated with the education examination stream of ICMA as well. He is now acting as a CEO and head of finance and audit at DG Tax Energy Private Limited. And having over 28 years of experience. फरोख भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं. आज हमारे मॉडरेटर हैं वो. उनके साथ जो पैनलिस्ट हैं हमारे बहुत एस्टीम्ड learned professional Mr. Ashfaq Ahmed Nasab. Ashfaq Saab is a fellow member of ICMA. He is a principal of Man Associates and has a diversified experience of over 37 years. This is one a big experience we have. Ashfaq Saab is also working as a tax advisor for corporate affairs as well. He served as a cost auditor as well in Auditor Journal. And besides him, we have the second panelist, Mohammad Yusuf Saab. He is also a fellow member of ICMA and APFA as well. Yusuf Saab having a degree in finance and accounting, and he is the secretary treasurer of NBC ICMA, director at Unique Educational Network. He's also a very having a hefty sort of an experience in the tax professionalism line. Hope so. Mr. Azim Hussain Siddiqui Saab also will join us as a panelist among these two panels. Farooq, I hope you are ready with the moderation techniques. Assalamu alaikum to all of you. Yes, of course. Yes, Farooq is over to you now. Now we are starting the session. First question is from Mr. Ashfaq. How tax credit for contribution to approved pension fund can be claimed in the return? My question is, I'm repeating the question. How tax credit for contribution or to approved pension fund can be claimed in the return? It can be claimed by who is eligible under section 2 subsection 19A, and eligible person is who is having an NTN, CNIC or NICOP, यानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी का शनाख्ती कार्ड होता है. इन तीनों में से कोई भी एक हो तो वो एलिजिबल है. फिर उसका वो क्राइटेरिया है कि उसको जो है ना वो कैसे मिलेगा उस पे जो है ना वो क्रेडिट. वही फॉर्मूला जैसे अभी वो बता रहे थे, जमशेद साहब भी बता रहे थे. आपका टोटल जो है वो टैक्स असेस्ड डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम और मल्टीप्लाइड बाय लेसर ऑफ 2. लेसर ऑफ 2 में जो है वो उसके टोटल जो उसने प्रीमियम पे किया है या ग्रेचुटी उसकी कंट्रीब्यूशन पे की है उससे एक्सीड ना करे. सेकेंडली उसमें जो है ना वो 20% ऑफ हिज इनकम उससे जो है वो एक्सीड ना करे. ये दो उसकी कंडीशंस होती हैं. And if a person joins after the age of 41, तो फिर उसके लिए जो है वो every year 2% जो है ना वो इंक्रीज कर दिया जाता है. तो उसमें फिर सीलिंग होती है कि 50% ऑफ इनकम जो है उससे जो है ना वो इंक्रीज ना करे. ठीक है, थैंक यू. अच्छा, अगला सवाल मेरा यूसुफ साहब से है. बिजनेस खत्म करने के बाद
कितने अरसे तक जो है वो लायबल रहेगा रिटर्न फाइल करने के लिए, कोई भी बिजनेसमैन? जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि कितने अरसे तक जो है रिटर्न फाइल करना होगा एक बिजनेसमैन को बिजनेस खत्म करने के बाद? देखें, अगर एक बिजनेस डिसकंटिन्यू कर देता है तो एज पर सेक्शन अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू करने के 15 डेज के अंदर अंदर कमिश्नर को इन्फॉर्म करना होता है कि मैंने अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया, और या उसको कमिश्नर नोटिस भेज सकता है अगर कमिश्नर को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि डिसकंटिन्यू कर दिया। तो जहां उसने अपनी लास्ट इनकम टैक्स की थी वहां से लेकर उसने अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू किया वहां तक इसको इनकम टैक्स फाइल करनी है। कमीशन नोटिस दिया तो उस नोटिस के अंदर उसकी ड्यू डेट होती है कि उसने अपनी फाइनल टैक्स रिटर्न सबमिट करना होती है। तो ये प्रोसीजर होता है कि अगर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है जमशेद साहब से कि अगर किसी शख्स को शो कॉज नोटिस मिला हुआ है तो क्या वो अपना रिटर्न रिवाइज कर सकता है शो कॉज नोटिस मिलने के बाद? जी जमशेद सर, साहब। इसमें जी जी जी। अच्छा, इसमें सर है कि इसको थोड़ा सा मैं डिटेल से भी डिस्कस कर देता हूँ कि अगर किसी पर्सन ने अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट की है और विद इन 60 डेज वो विदाउट कमिश्नर के अप्रूवल के ना अपनी टैक्स रिटर्न रिवाइज कर सकता है। ठीक है, मगर उसमें अगर उसकी कोई शॉर्ट अमाउंट ऑफ टैक्स थी तो वो उसने पे करनी है। जैसे सेकंड में है कि अगर किसी को कोई असेसमेंट का नोटिस आ गया है, ठीक है, तो अब वो रिवाइज भी करना चाह रहा है रिटर्न मगर उसे नोटिस आ चुका है तो वो वैसे रिवाइज नहीं कर सकेगा। उसके लिए ये है कि जो शॉर्ट अमाउंट ऑफ टैक्स उसकी मिसिंग है प्लस डिफॉल्ट सरचार्ज और विद पेनल्टी ऑफ 25% वो उसने पे करनी होगी अगर असेसमेंट का उसे नोटिस आ चुका है। तो थर्ड ये है कि अगर आपने जो अभी क्वेश्चन पूछा है कि शो काज अगर किसी को आ जाता है तो शो काज की सूरत में ये है कि शॉर्ट अमाउंट ऑफ टैक्स उसी तरह डिफॉल्ट और पेनल्टी विद 50% जो है वो पे करेगा तो उसकी ये रिटर्न फिर सबमिट हो जाएगी और एक्सेप्ट भी हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा अशफाक साहब से है। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बीइंग अ लेट फाइलर और नॉन फाइलर? लेट फाइलर अगर कोई है या नॉन फाइलर है तो वो क्या क्या चीजें उसको जो है वो भुगतना पड़ेंगी या कौन से कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसके लिए? जी प्लीज जी, अशफाक साहब। इसमें आपके क्वेश्चन के जो है वो दो पार्ट्स हैं, नॉन फाइलर, सेकंड लेट फाइलर। तो नॉन फाइलर के लिए ये है कि नॉन फाइलर जो है उसके लिए पेनल्टी भी है, उसको अपना नॉन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, नॉन फाइलिंग ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट, ये पेनल्टीज हैं। उसके अलावा फिर उसके जो है ना वो सेम ब्लॉक जो है वो भी हो सकती है, उसके जो है ना वो यूटिलिटी कनेक्शन जो है उनके लिए क्या कहना चाहिए, अभी तक तो वो प्रोसीजर नहीं इनका जो है ना बन सका, लेकिन वो लॉ में चूंकि प्रोवाइडेड है तो वो इलेक्ट्रिसिटी और गैस जो है वो कनेक्शन जो है वो भी डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। और बाकी जो मेन इसमें होता है कि वो रेट ऑफ विद होल्डिंग टैक्स, वो जहां पे भी है उसमें वो 10th शेड्यूल में जो है वो क्या लेके प्रोवाइड किया गया कि उसमें जो है वो 100%, 200%, 300%, वो डिफरेंट उन्होंने वो रूल्स जो है वो बना दिए हैं कि उसमें जो है ना ये क्या लेके उनका रेट जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। बाकी जो है वो लेट फाइलर एक नई जो है वो क्या लेके इसमें इस्तेलाह जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है अभी फाइनेंस एक्ट में। तो इसमें ये है कि लेट फाइलर के लिए जो है ना वो और तो जो है ना वो नहीं है, सिर्फ इसका ये है कि 236 के और 236 सी, इन दोनों में जो है उसका टैक्स का रेट जो है वो बढ़ जाएगा, वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा फाइलर से। फिर वो 3% है तो 3% का 6% हो जाएगा, 3.5 का 7 हो जाएगा। इस तरह जो है ना वो उसके जो है ना वो तमाम कैटेगरीज में उसका ऐसे ही होगा। अच्छा यूसुफ साहब, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे। अभी हमने जैसे बताया अशफाक साहब ने कि जी रेट डबल हो जाएगा, तो रेट डबल तो नॉन फाइलर के केस में भी होता है, तो फिर बंदा लेट फाइलर बने ही क्यों? मतलब क्या बेनिफिट कोई है उसको लेट फाइलर होने का? अगर मैं फाइलिंग में लेट हो गया हूँ, मैं फाइल करूँ जाके, या मैं कहूँ ये छोड़ो नॉन फाइलर ही रहो जब रेट ही सेम अप्लाई होना है तो? देखें, जो इस साल फाइनेंस एक्ट 2024 आया है, इससे पहले जो टैक्स ईयर खत्म हुआ, टैक्स ईयर 2024, उस वक्त तो सिर्फ दो ही टर्मिनोलॉजी थी कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है या नॉन एक्टिव है। एक्टिव टैक्स पेयर को हम कॉमनली फाइलर कहते हैं और नॉन एक्टिव को हम कॉमनली नॉन फाइलर कहते हैं। और ये जो फाइलर और नॉन फाइलर का जो लफ्ज है ये हमारा एक कॉमन प्रैक्टिस में लफ्ज आ गया, अदरवाइज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इस टाइप का लफ्ज कोई एग्जिस्ट नहीं करता। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का नाम है, एटीएल का नाम है। अच्छा, 2024 से पहले ये होता था कि कई सारे लोग प्रॉपर्टी परचेज और सेल जब करते थे तो वो अपनी सिर्फ एक ही रिटर्न फाइल करते थे और लेट पेमेंट सरचार्ज 1000 का एटीएल का सरचार्ज पे करते थे और वो फाइलर बन जाते थे। और उन्होंने फिर अपनी प्रॉपर्टी परचेज या सेल कर ली और अपना जो फाइलर का बेनिफिट था वो ले लिया और उससे ऑनवर्ड दोबारा उन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं की।
किसी को नोटिस आए नहीं आए, क्या हुआ नहीं किया हुआ। तो फिर लॉ ने इसका सोल्यूशन ये निकाला कि एक नई टर्म इस साल इंट्रोड्यूस की है, उसका नाम लेट फाइलर का है। यानी जो टैक्स ईयर 2023 की रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहा है, अब 2024 में आकर अगर टैक्स ईयर 2023 की रिटर्न फाइल कर रहा है, तो लॉ ने उसका नाम अब लेट फाइलर की लिस्ट में डाल दिया है। तो अभी 30 जून 2024 से पहले कई सारे लोगों ने मतलब बड़ी रेपिटेटिवली रिटर्न फाइल की हैं और अपने आप को फाइलर कंसीडर किया और अपनी प्रॉपर्टीज के जो बेनिफिट्स लेने थे वो ले लिए। तो 1 जुलाई से जब ये फाइनेंस एक्ट प्रोमलगेट हुआ है, तो उससे ऑनवर्ड अब ये टर्मिनोलॉजी एडवांस बन गई कि जो लेट फाइलर होगा उसके जो टैक्स रेट होंगे वो फाइलर के निस्बत हाफ होंगे और नॉन फाइलर की जो निस्बत होगी उसके ज्यादा होंगे। तो एक नई थर्ड टर्म इंट्रोड्यूस कर दी लेट फाइलर के नाम से। अब जो लेट फाइलर है उसने अगर 30 सितंबर 2024 से पहले अपनी टैक्स ईयर 24 की रिटर्न फाइल कर दी है, लेट फाइलर ने अगर 30 सितंबर से पहले उसने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है, तो फिर 1 मार्च 2025 को जाकर वो लेट फाइलर की लिस्ट से निकलकर फाइलर की लिस्ट में जाएगा। तो ये टर्म इस दफा लॉ ने इंट्रोड्यूस की है, लोगों को पेनलाइज की है जो एक रिटर्न फाइल करते थे और फाइलर बन जाते थे और अपना टैक्स एडवांटेज ले लेते थे। तो ये इस दफा चेंज आया है बहरहाल, और ये टैक्स ईयर 25 में इंप्लीमेंट है, जो प्रीवियस रिटर्न फाइल हुई उसमें तो ठीक है। अच्छा, जमशेद साहब से नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। इफ अ पर्सन अप्लाइज फॉर एक्सटेंशन बट commissioner does not pass any extension order, will the person be categorized as late filer? जी जमशेद साहब। यस जी, यस बिल्कुल वो लेट फाइलर होगा, मगर सिस्टम में एफबीआर की डाटाबेस में उसका स्टेटस इमीडिएटली लेट फाइलर नहीं आएगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी अगर ये वाली जो ड्यू डेट है इसके अंदर अगर कोई पर्सन एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करता है और उसे किसी वजह से एक्सटेंशन अप्रूव उसकी नहीं होती, तो अभी जो स्टेटस चल रहा है एटीएल का, ये चल रहा है 2023 का एफबीआर की डाटाबेस के ऊपर। ये स्टेटस अपडेट होता है 1 मार्च को नेक्स्ट ईयर पे। ठीक है, तो जो ही उसका ये स्टेटस 1 मार्च आएगी, फिर उसका स्टेटस जो है वो उसमें चला जाएगा। चूंकि अभी तो प्रीवियस चल रही है जो डाटाबेस है, वो चूंकि अपडेट नहीं है। जो ही आप 24 की फाइलिंग करेंगे, विद इन टाइम अगर कह देते हैं आपकी फाइलिंग 3 साल की कंटिन्यूटी में हो रही है, तो फिर आपका स्टेटस आ जाएगा एक्टिव फाइलर। और अगर किसी का स्टेटस जो है वो 3 साल में से कुछ रिटर्न्स लेट हैं, तो या कोई एक आध लेट भी हो जाती है, तो उनका जो स्टेटस है वो लॉ में है कि वो इनएक्टिव ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अशफाक साहब। हाउ फार द विदहोल्डिंग टैक्स data appearing in MIS tab और IRIS पोर्टल इज वैलिड? विदहोल्डिंग टैक्स जो आ रहा है हमारे पास वो जी किस जी, हद मैं तक वैलिड होता है? वैसे समझ गया हूँ फिरोज साहब। इसमें ऐसे है कि जो डेटा MIS में आ रहा होता है वो ऑलमोस्ट जो है वो ऑलमोस्ट ठीक होता है। पहले इसमें जो है ना वो काफी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, लेकिन अब ये है कि अब काफी स्ट्रीमलाइन हो गया। डेटा अक्सर ठीक होता है, लेकिन प्रॉब्लम जो है ना वो इससे आगे शुरू होता है। ये डेटा जो है ये इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट नहीं होता। ये इसमें जो है ना कह ले कि ज्यादा इशू है। ये इशू कम है कि जो डेटा दिया हुआ है वो करेक्ट है या नहीं है, वो ऑलमोस्ट करेक्ट होता है। लेकिन ये है कि ये इसमें होता है, बात का तो होता है कि आज आप देखेंगे तो कुछ जो है ना वो क्या लगे पेमेंट्स, टैक्स पेमेंट्स जो है उसमें अपडेटेड नहीं है। आज के 1 महीने बाद देखेंगे तो वो आज से पुरानी जो है पिछली डेटों की जो है ना वो भी अपडेट उसमें हो चुकी होंगी। तो दूसरा इसमें जो है ना ये होता है कि जैसे वो बैंक्स की डिडक्शन हो रही है 231 वाली, वो 231A वाली, वो उसमें जो है ना वो नहीं आ रही। इसी तरह जो है वो मोबाइल कंपनीज जो है आपका जो टैक्स काट रही हैं वो उसमें नहीं आ रहा। और जो है ना वो जो डिस्कोज हैं वो जो आपका टैक्स विदहोल्ड कर रही हैं वो उसमें नहीं आ रहा। तो ये कह लें कि इनकम्प्लीट है, लेकिन यह है कि रिलायबल है ऑलमोस्ट, जो है ना वो 90% जो है ना रिलायबल है। जो डेटा उसमें है उस पर आप रिलाय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जमशेद साहब। इफ अ पर्सन डजंट फाइल रिटर्न फॉर अ ईयर, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स द कमिश्नर कैन स्टिल इशू नोटिस फॉर फाइलिंग फॉर रिटर्न? अच्छा जी, ये सेक्शन 114 में बताया गया है कि अगर किसी ने 1 साल या इससे ज़्यादा की टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, तो उसमें कमिश्नर क्या है कि वो नोटिस कर सकता है इनिशियली कि वो लास्ट 5 इयर्स की टैक्स रिटर्न्स सबमिट करवाए। और अगर उसी नोटिस पे जो है टैक्स पेयर ने अपने टैक्स रिटर्न सबमिट कर दिया तो ठीक, अदरवाइज वो एक और नोटिस इशू कर सकता है जिसके लिए उसको 10 इयर्स की टैक्स रिटर्न्स का भी वो कहा जा सकता है।
तो ये काफी स्ट्रिक्ट है, मींस कि अगर आप कोई एक उसकी स्किप भी करते हैं कि कोई रीजंस हैं, तो आप फिर तैयार हो जाएं पिछले 5 साल के लिए या 10 साल की टैक्स रिटर्न सबमिट करवाने के लिए। जी ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर यूसुफ, व्हाट पेनल्टीज एंड फाइन्स अप्लाई फॉर लेट और नॉन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न? जी यूसुफ साहब। जी देखिए, अगर एक बंदा रिटर्न फाइल नहीं कर रहा तो वो नॉन फाइलर बन जाता है, तो कमिश्नर के पास पावर है कि वो उससे एनफोर्स करके रिटर्न फाइल करवाए। और अगर इन केस ऑफ नॉन फाइलिंग तो उसका जो बिजली का या गैस का जो कनेक्शन है वो भी डिसकंटिन्यू किया जा सकता है, उसका मोबाइल फोन को भी, या उसके जो सिम नंबर है उसको भी मतलब कैंसिल किया जा सकता है पीटीए के थ्रू के पास, जैसे लास्ट डेज में एफबीआर ने की अभी है। और जहां तक बात नॉन लेट फाइलर की है, तो लेट फाइलर के जो टैक्स रेट हैं वो थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन वो लेट फाइलर मिड में फॉल कर रहा होता है कि उसके जो रेट्स होते हैं वो फाइलर के निस्बत कम होते हैं और नॉन फाइलर के निस्बत फिर इन दोनों में वो rate बढ़ जाते हैं। तो जो अदर पेनल्टीज हैं वो जैसे शुरू में जमशेद साहब ने भी बता दिया था कि अगर एक पर्सन रिटर्न फाइल नहीं करता या फेल हो जाता है रिटर्न फाइल करने में, उसको 0.1% की पेनल्टी भी है पर डे के हिसाब से, 1000 भी है फॉर ईच डे ऑफ डिफॉल्ट। ये सारी ऑलरेडी ना स्लाइड्स के साथ में ये डिस्कस हो चुका हुआ था। तो अगर वो यूजर के पास पावर है कि उसके बिजली या गैस के कर दे, या जो है ना उसके मोबाइल फोन जैसे इनको क्या कर दे, डिसकंटिन्यू कर दे। नेक्स्ट हमारे पास है अशफाक साहब से सवाल है, हाउ कैन सैलरीड इंडिविजुअल बिजनेसेस एंड प्रॉपर्टी ओनर्स एंश्योर दे आर फाइलिंग देयर रिटर्न्स करेक्टली? इसमें सिंपल यही है कि आपने जो रिटर्न सबमिट करनी है उसको बड़ा केयरफुली जो है वो आपने क्या लगे उसमें फिगर सारी पुट करनी है, प्रॉपर कॉलम में पुट होनी चाहिए। इसी तरह जो है अगर आप कोई एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं या आप कोई टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं या आप कोई डिडक्टेबल अलाउंस जो है वो क्लेम कर रहे हैं, तो वो बड़ा केयरफुली जो है वो आप उसको क्लेम करें। और उसके बाद जो है जो रिक्वायर्ड उसके जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स अटैच होने हैं वो साथ में अटैच कर दें। तो यही कह ले कि इसको जो है ना वो इंश्योर करने का जो है वो है, या अब इसके साइनिंग है तो जो पिन है वो कह ले कि उसी शख्स की होनी चाहिए जो टैक्स पेयर है, या उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है अंडर सेक्शन 172 उसकी होनी चाहिए। तो मतलब यह है कि इसके बगैर जो है वो कोई और शख्स जो है वो उसको जो है वो वेरीफाई ना कर रहा हो। यही इसके जो है ना वो मेजर्स लिए जा सकते हैं कि वो इंश्योर हो सके कि करेक्ट रिटर्न। Now my question is from Azim Saab, what are the most common mistake taxpayers make while filing their income tax returns and how can they avoid them? अच्छा सॉरी, वालेकुम मेरी सलाम। जिस वक्त मैं अपना नोट पेश कर रहा था तो डिस्कनेक्ट भी हो गया। बहरहाल उस पे मैं अभी फिर बात कर लूंगा। ये कमिंग टू योर क्वेश्चन फर्स्ट, देखिए मिस्टेक जो करते हैं नॉर्मली रिटर्न में, सबसे पहले तो मैं अगर ये जमशेद ने भी बताया पहले अपनी प्रेजेंटेशन में कि सेक्शन 114 की रिक्वायरमेंट जो कि रिटर्न ऑफ इनकम का मेन सेक्शन है, वो उसमें जो सब सेक्शन 2 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि वो हमें बताता है इसेंशियल्स फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, जिसमें वो हमें 4-5 चीजें बोलता है, डॉक्यूमेंट्स बड़ी और रिक्वायरमेंट। नंबर 1, इट हैज टू बी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। तो चलें, अब हम क्योंकि IRIS पे कर रहे होते हैं तो वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म तो होता है, उसके लिए टैक्स पेयर मिस्टेक नहीं कर रहा होता। लेकिन उसके बाद बोलता है शेल बी इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर, शेल फुली स्टेट द इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न, यानी जो कॉलम रिलेवेंट हैं आपके वो सारे फिलअप होना जरूरी है। ब्लैंक कॉलम छोड़ना या कोई कॉलम आप पे एप्लीकेबल है और आप उसको सही तरह से फीड नहीं कर सके तो आपका रिटर्न वैलिड रिटर्न से आउट हो सकता है। अच्छा, फिर इसी तरह शेल बी अनेक्स्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स। अब जो डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब की गई हैं वो उसके साथ अटैच होना बड़ा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे वेल्थ स्टेटमेंट होना चाहिए, उसके अलावा जो आपके ऑडिटेड अकाउंट्स हैं या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स हैं वो आपके साथ में, अगर इन केस ऑफ ए बिजनेस है। अच्छा, फिर इसके साथ साथ एक डिक्लेरेशन देनी होती है जो फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड्स, जो आपने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए इस रिटर्न के बैकअप में, वो आपके पास ज़रूरी हैं।
अच्छा, एक और रिक्वायरमेंट है, शेल बी साइंड बाय द पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल और इज रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन ऑनलाइन साइन, जाहिर है ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग में साइन नहीं होता बल्कि वो पिन कोड होता है, तो ये रिक्वायरमेंट भी आमतौर पे पूरी हो जाती है। तो ये इसेंशियल्स फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न जो सेक्शन 114(2) में बोली गई हैं, ये बड़ी जरूरी है, बिकॉज आगे जो सेल्फ असेसमेंट का सेक्शन 120 है उसमें भी ये कहा गया है कि सेल्फ असेसमेंट की जो प्री रेक्विजिट है वो फाइलिंग ऑफ कंप्लीट रिटर्न है, और कंप्लीट रिटर्न को उसी सेक्शन 120 में डिफाइन किया गया है कि इफ इट इज इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 1142। तो ये सबसे बड़ी, तो आप ये रिक्वायरमेंट समझ लीजिए जो अक्सर टैक्स पेयर ओमिट कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज जो मैंने देखा है कि अक्सर जगहों पे रुझान रहा है कि जब रिटर्न के साथ अटैचमेंट में अकाउंट्स अटैच करने होते हैं, तो वो उसमें अकाउंट्स अटैच करने के बजाय और एक सिंपल पीडीएफ डॉक्यूमेंट अटैच कर देते हैं जो कि ऑलमोस्ट ब्लैंक होती है या उसमें कुछ बेमानी सी फिगर्स होती हैं, और उस वक्त फॉर द टाइम बीइंग वो कोशिश करते हैं कि बस ये एक डॉक्यूमेंट अटैच हो जाए और रिटर्न किसी तरह सबमिट आ जाए हमारे पास आज की डेट में। तो इसमें अब हैवी पेनल्टी रखी गई है और इवन प्रोसिक्यूशन की भी प्रोविजन इन्होंने फाइनेंस एक्ट में इंट्रोड्यूस कर दी है, यानी ना सिर्फ वो पेनल्टी फॉर इनकरेक्ट फाइलिंग हो जाएगी बल्कि साथ में प्रोसिक्यूशन भी हो सकती है। तो ये बड़ा सबसे पहले तो ये खास। फिर दूसरी चीज जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो जाहिर है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में टेकिंग रॉन्ग एग्जेम्पशंस, टेकिंग रॉन्ग रिडक्शंस इन टैक्स लायबिलिटी या टेकिंग रॉन्ग टैक्स क्रेडिट्स जो कि पॉसिबल नहीं हो, जो कि वैलिड ना हो और लोग वो भी ले लें रिटर्न में, जो कि बाद में फिर कंसीलमेंट का बाइस बनते हैं। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो नॉर्मली टैक्स पेयर कर रहे होते हैं। जी फरूक। थैंक यू। अच्छा, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन फरोग, मेरा यूसुफ फरोग साहब। आपकी बात को जरा सा मैं, और इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस जो मैंने ऑनलाइन भी लिए वो फिर मैं, आप अपने पहले क्वेश्चंस पूरे कर लीजिए, तो ऑनलाइन क्वेश्चंस भी कुछ मैंने आंसर लाइव करने थे। जी जी जी, जरूर। What role does the wealth statement play in the tax return filing process, and who needs to file one? Yusuf साहब। जी देखें, एज पर सेक्शन 116 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, एवरी इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड टू फाइल वेल्थ स्टेटमेंट। इंडिविजुअल पर्सन को भी वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराना होती है, और जो एओपी यानी पार्टनरशिप का मेंबर होता है उसको भी वेल्थ स्टेटमेंट सबमिट करना होती है। अब वेल्थ स्टेटमेंट होती क्या है? एक इंडिविजुअल पर्सन के जो एसेट्स और लाइबिलिटीज की जो स्टेटमेंट्स होती है उसको हम वेल्थ स्टेटमेंट कहते हैं। जिस तरह से एक बिजनेस की बैलेंस शीट होती है, वैसे एक इंडिविजुअल की बैलेंस शीट को क्या कहा जाता है? वेल्थ स्टेटमेंट कहा जाता है, जिसमें वो पर्सन बताता है कि 30 जून को टैक्स ईयर के एंड पर मेरे नाम पर कौन कौन से एसेट्स हैं और कौन कौन से लाइबिलिटीज हैं, और उसकी नेट वेल्थ क्या है। और वेल्थ स्टेटमेंट के साथ साथ एक दूसरी स्टेटमेंट होती है, वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये भी साथ सबमिट कराना होती है। यानी अगर आप वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन जमा नहीं कराते तो ये वेल्थ स्टेटमेंट कंसीडर नहीं होती। अब वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन क्या होती है? जैसे शुरू की स्लाइड में भी इस पर बात हो चुकी थी कि वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें आप ये बताते हैं कि पिछले साल 30 जून को आपकी नेट वेल्थ क्या थी, यानी एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस करके नेट बैलेंस क्या बचा था, और इस साल आपके 30 जून को आपके नेट एसेट्स क्या हैं, पिछले साल से इस साल में इसमें इंक्रीज आया है या डिक्रीज आया है। अब अगर जो इंक्रीज आया है तो फिर आप उसकी सपोर्टिंग इनकम बताते हैं कि ये जो इंक्रीज आया वो कितना आया। यानी फर्ज की एक बंदे की पिछले साल इनकम 50 लाख, नेट एसेट्स 50 लाख के थे, इस साल उसके नेट एसेट 60 लाख के हो गए, तो उसके नेट एसेट में 10 लाख का जो इंक्रीज आया है, ही विल हैव टू जस्टिफाई कि 10 लाख का इंक्रीज कहाँ से आया। डेफिनेटली वो अपनी इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस से डिनोट कर रहा होगा जिससे उसने इनकम कमाई होगी। तो इसको हम वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। इंडिविजुअल को सबमिट करना होती है और एओपी का जो मेंबर होता है उसको भी साथ सबमिट करना होती है। थैंक यू। अच्छा अशफाक साहब, आपसे क्वेश्चन है मेरा नेक्स्ट, कि अगर वेल्थ स्टेटमेंट को जमा करवा रहा है तो उसे अपने फॉरेन एसेट्स और फॉरेन इनकम भी उसमें शो करनी होगी? जी बिल्कुल, उसमें जो है वो फॉरेन एसेट्स जो है वो शो करने होते हैं, फॉरेन इनकम जो है वो भी शो करनी होती है। ये अलग बात है कि वो इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट है या नहीं है, डबल टैक्सेशन के ट्रीटीज जो है वो क्या हमारे उस मुल्क के साथ हैं, लेकिन यह है कि वो हमने शो हर हाल में करनी होती है। और जो और अपना पाकिस्तान के बाहर जो एसेट्स हैं वो भी हमने डिक्लेयर करने होते हैं। प्लस इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वो एक जो है वो सेक्शन 116 ए भी है, 116 ए। ये तो आपने क्वेश्चन किया है 116 का,
अब 116A में जो है वो भी कह ले कि वो एक रेजिडेंट जो टैक्स पेयर है उसके अगर 10,000 से ज्यादा उसकी फॉरेन इनकम है, $10,000 आर इक्विवेलेंट, और इसी तरह जो है वो $1,00,000 या उसके इक्विवेलेंट से ज्यादा उसके जो है फॉरेन एसेट्स हैं तो वो भी डिक्लेयर करने होते हैं। और इसमें भी थोड़ी कंट्रोवर्सी है, कुछ जो है वो कह ले के लोग कहते हैं कि चूंकि ये ऑलरेडी उसमें डिक्लेयर हो गया वेल्थ स्टेटमेंट में 116 में, तो ये जो है ना ये काफी होगी, लेकिन मेरे ख्याल में ये काफी नहीं है, क्योंकि इसमें जो सेक्शन 1142 इसके दो जो है ना वो क्लासेस हैं, एक ई है एक एफ है। ई में वो कह रहे हैं कि वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो इसके साथ फाइल होनी चाहिए रिटर्न के साथ, और एफ में कह रहा है कि इसके जो है ना वो 116A की जो स्टेटमेंट है ऑफ फॉरेन इनकम एंड फॉरेन एसेट्स वो भी फाइल होनी चाहिए, और दोनों के दरमियान एंड है, इट मींस वो भी जमा होनी है और 116A की स्टेटमेंट भी जमा होनी है। Sorry to interrupt in between. I just like to announce that it's on a surprising note. Mr. Shadad Ahmed Malik, President of ICMA, has joined us on a surprising note. We welcome you on board, sir. Shadad sir. You are most welcome. And good evening to you, sir. Currently, we have some panel discussion going on, and we just need 5 to 10 minutes maximum to wind up that panelist session before we can come towards you for the final remarks, sir. Okay. Thank you. Thank you very much. And the panelists, please, Farokh, you can continue with the last of the questions, please. Okay, Azim Saab, over to you now, as you have some questions. जी फरोग, ये लाइव क्वेश्चंस जो थे इनमें से मैंने कुछ नोट कर लिए थे। एक क्वेश्चन था कि अनफंडेड ग्रेच्युटी है उसकी टैक्सेबिलिटी के बारे में। तो सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 और क्लॉज 13 है जो ग्रेच्युटी को डील कर रही होती है। इसमें रिकग्नाइज्ड ग्रेच्युटी फंड से अगर मिल रही है तो वो फुली एग्जम्प्ट होती है। अनरिकग्नाइज से मिल रही है, अगर गवर्नमेंट रिलेटेड है, एफबीआर से स्कीम अप्रूव बाय फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो 3 लाख तक एग्जेम्प्ट होती है, उससे ऊपर टैक्सेबल होती है। और अगर अनरिकग्नाइज ग्रेच्युटी है तो फिर उसमें 50% ऑफ ग्रेच्युटी अमाउंट और ₹75,000 इन दोनों में से जो कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अच्छा, अब बाकी इसका मतलब है ओवर एंड अबव दिस वो टैक्सेबल होगा। और इसकी जो टैक्सेबिलिटी है वो सेक्शन 12 के सब सेक्शन 6 के तहत गवर्न होती है, कि जो ये कहता है कि 3 इयर्स एवरेज रेट का इसके ऊपर टैक्स लगेगा। नहीं, दिस शिल बी ए सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। ठीक है, सेक्शन 12(6) इसमें जिन पार्टिसिपेंट ने ये क्वेश्चन पूछा था वो रेलेवेंट सेक्शन ये है, और क्लॉज 13 सेकंड शेड्यूल पार्ट 1। इसी तरह बिल्कुल मिलता जुलता एक क्वेश्चन पीएफ के बारे में था। पीएफ में भी यही है कि अगर वो रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में है, ऐसे मिला है, तो क्लॉज 23 है सेकंड शेड्यूल पार्ट 1, और इसके तहत ये फुली एग्जेम्प्ट है। इन केस के इट इज अनरिकग्नाइज्ड ग्रेच्युटी फंड, तो वहाँ पर फिर 150K तक का इनका कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट होता है, और 16% से ज़्यादा अगर इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड मिला है तो वो टैक्सेबल होता है, वो पोर्शन अमाउंट एक्सीडिंग 16% ऑफ इंटरेस्ट और 16% ऑफ रेट और ₹150,000, इससे एक्सेस अगर कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, ये टैक्सेबिलिटी इसकी भी यही है कि एट द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही होगी इसकी, और 3 इयर्स एवरेज रेट पे हो जाएगी। एक क्वेश्चन आया था कि एक नॉन रेजिडेंट है जिन्होंने पाकिस्तान में एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया है एलएलपी या एओपी की तरह से उनके अम्ब्रेला में, तो उसके बारे में कहा था कि क्या ये रेजिडेंट बन जाएंगे इससे। नहीं, देखें, सबसे पहले तो ये कि जो एओपी फॉर्म की है या एलएलपी फॉर्म की है वो बजाते खुद एक सेपरेट पर्सन बन जाएगा, तो वो इंडिविजुअल से तो उसका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। ये क्योंकि बजाते खुद नॉन रेजिडेंट ही ओवरसीज ही रहे हैं, तो इस वजह से इनका स्टेटस नॉन रेजिडेंट ही रहेगा। वंस अगेन रिपीटिंग, इंडिविजुअल इसमें नॉन रेजिडेंट ही रहेंगे, और जो एओपी होगी वो क्योंकि उसके कंट्रोल और मैनेजमेंट पार्टली या होली पाकिस्तान में होगा, तो वो रेजिडेंट की डेफिनेशन है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था जिन्होंने कहा था कि एक इंडिविजुअल है जो जुलाई से
दिसंबर तक पाकिस्तान में थे और जनवरी से लेके जून तक पाकिस्तान से बाहर थे, तो क्या इनका स्टेटस रेजिडेंट का होगा या नॉन रेजिडेंट का होगा? देखिए, इसमें सवाल जरा सा वेग है, क्योंकि जो ऑर्डिनेंस में जो रेजिडेंशियल स्टेटस का टेस्ट लिखा गया है वो 183 डेज और मोर का लिखा गया है। तो अब हमें ये देखना है कि जुलाई से लेके और दिसंबर तक जब आप बोल रहे हैं, तो इसमें कौन सी डेट से कौन सी डेट, यानी मिड ऑफ जुलाई भी हो सकता है या दिसंबर में भी ये हो सकता है कि पूरे 31 दिसंबर ना हो, 15 दिसंबर को चले गए हो। तो ये दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन number of days. We have to take his passport and count the number of days. If पाकिस्तान में स्टे इनका 183 डेज से बढ़ जाता है तो रेजिडेंट का स्टेटस है और वर्ल्ड वाइड इनकम के हवाले से चार्जेबल हो जाएगी इनकी इनकम। वेयर एज अगर ये नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन में आ जाएंगे, 183 डेज से एक्सीड ना किया इन्होंने, सॉरी 182 डेज से एक्सीड ना किया, तो फिर ये नॉन रेजिडेंट रहेंगे और नॉन रेजिडेंट होने के केस में इनकी सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम चार्जेबिलिटी है। एक और क्वेश्चन था, मैं जल्दी जल्दी मुख्तसर सिर्फ क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ और जवाब दे रहा हूँ उसका, कि वेल्थ स्टेटमेंट 2018 का था जिसमें वैल्यू प्रॉपर्टी अंडर वैल्यू हो गई थी, और अब क्या कर सकते हैं इसको सही वैल्यू पे लाने के लिए? देखिए, वैसे तो 2018 का ईयर अब टाइम बार हो चुका है, लेकिन इन ऑर्डर टू कीप द स्टॉक रिकॉर्ड स्ट्रेट, you can still file revised return for revised wealth statement for 2018, और फिर वहां से लेके और अब तक के सारे वेल्थ स्टेटमेंट आप रिवाइज करते हुए आएंगे, क्योंकि उनमें फिर नई फिगर ब्रॉट फॉरवर्ड होती जाएगी। तो ये बेहतर हल है, सो दैट कि अगर आप जब उनसे सेल करेंगे तो उसका जो कैपिटल गेन का अमाउंट है, अगर आपकी प्रॉपर्टी अंडर वैल्यू जा रही है तो कैपिटल गेन का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा 2024 का नील रिटर्न में इनकी इनकम नहीं है और ये प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं और फाइलर बनना चाहते हैं, यस यू कैन स्टिल फाइल 2024 रिटर्न, लेकिन ये कि जमशेद ने जैसे बोला कि आपको फाइलर का या एटीएल का जो स्टेटस है वो आपका 1 मार्च 2025 के बाद बन सकेगा। 116 के ऊपर अभी बड़ा कम्प्रिहेंसिव जवाब दिया है अशफाक साहब ने कि 116 में ऑल्दो आप अपनी तमाम एसेट्स वेदर इन पाकिस्तान और इन अब्रॉड डिक्लेयर कर चुके होते हैं वेल्थ स्टेटमेंट में, लेकिन अगर थ्रेशोल्ड आपकी इनकम का $10,000 या एसेट्स फॉरेन एसेट्स का $1,00,000 से ज्यादा है, तो आपको वो स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन एसेट्स और फॉरेन लाइबिलिटीज भी कंपलसरी है फिल करना, अदरवाइज जैसे मैंने कहा कि वो आपका इनवैलिड रिटर्न हो जाएगा एज इफ इट हैज नॉट बीन फाइल्ड। तो आई होप कि मैं ऑनलाइन से जितने क्वेश्चन ले सका वो मैं इस पर जवाब दे दिए हैं, और फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप सीपीटी डिपार्टमेंट में लिख सकते हैं और हम इनको जवाब देने पे बिल्कुल बखुशी आपको ईमेल के जरिए जवाब दे सकते हैं। आई टेक द अपॉर्चुनिटी, अनफॉर्चुनेटली जिस वक्त मेरी पहले स्पीच थी वो तो डिस्कनेक्ट हो गया था मैं, तो मैं यहाँ पे बस मुख्तसरन मैं कामरान बताना चाहूँगा कि नेशनल सीपीडी से हमने ये एक कोशिश की आज जो प्रोग्राम किया है, और हमने इसमें एक ब्लेंड रखा है हमारे स्पीकर और पैनलिस्ट का, कि जहाँ पर हमने एक तरफ अशफाक साहब जैसे सीजन प्रोफेशनल को दावत दी थी, और बहुत शुक्रिया अशफाक साहब जो आपने हमारी इस दावत को कबूल फरमाया, और तो बहुत शुक्रिया वंस अगेन। लेकिन इसके साथ साथ हमने दो बड़े यंग प्रोफेशनल्स को आज एंगेज किया। जमशेद इस्लामाबाद में माशाल्लाह हमें ज्वाइन किया है वहाँ से, और यूसुफ ये मुल्तान से हमारे साथ हैं। तो इट इज़ वेरी इनकरेजिंग टू सी कि हमारे यंग प्रोफेशनल्स माशाल्लाह इतनी अच्छी कैपेबिलिटीज़ के साथ बैठे हैं, और बड़ी अच्छी तरह जिन्होंने क्वेश्चंस को भी एड्रेस किया, और ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन भी थी, और फिर तजर्बा शामिल था अशफाक साहब का। और हमारी कोशिश है कि हम आईसीएमए के इस फोरम से, नेशनल सीपीडी से हमारे मैक्सिमम नौजवानों को मज़ीद आगे लाएं, इनको मौके दें, और आज के बाद मुझे उम्मीद है कि हमारे दोनों यंग पार्टिसिपेंट्स में कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ा होगा इनका, और अपने प्रोफेशन में और बेहतर तौर पे कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। और गाइडेंस के लिए अशफाक साहब माशाल्लाह फैसलाबाद में बैठे हुए हैं, लेकिन मैंने इनसे जब भी बात की है इन्होंने हमेशा अपनी होल हार्टेडली हमें इन्होंने ऑब्लाइज भी किया है और अपने मुफीद मशवरों से नवाजते रहें। बहुत शुक्रिया अशफाक साहब आपका भी, यूसुफ, जमशेद।
और सिद्दीक साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो ओवर टू यू कामरान साहब फॉर ऑनवर्ड। थैंक यू अजीम साहब, ये बड़ा गुड गेस्चर है आपकी तरफ से भी, आपका, यूसुफ साहब का, जमशेद का, अशफाक साहब का, आप अच्छा सबका। कामरान सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर मैं आपको भी मुबारकबाद दूंगा कि एमओसी के, तो क्योंकि आप हमारी नेशनल सेपीडी कमेटी में हैं, तो एमओसी के तौर पे आज आप भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आपने भी एक किरदार अदा किया इस सेमिनार को आज कामयाबी में। मुझे देखने में खुशी जो ये हुई है कि आज हमारी जो पार्टिसिपेंट्स की तादाद थी वो एट ए गिवन टाइम वो 190 को भी टच की है, जो कि माजी में कई सेमिनार से में ये इतनी तादाद मीट नहीं हुई थी। थैंक यू वंस अगेन। Thank you, Azim Saab. Thank you to all the panelists. Thank you, Farouk, for your wonderful moderation. I hope the participants get maximum benefited from this session. And now I would like to request and invite Shadad Ahmed Malik Saab. Shadad Ahmed Malik Saab is the president of ICMA, and he is currently serving as the CEO of Shadad Malik Management Consultants Private Limited, and over more than 24 years of experience in tax, finance, audit, and trainings, including 17 years in CMA practice. He served as a board member of various organizations, including SAFA, CAPA, and represented ICMA both nationally and internationally. He previously held leadership roles as a finance director at ISCO and Army Welfare Trust. And recently, we had a wonderful SAFA conference at Marriott Karachi, and Shehzad Saab really led that from the front. No doubt about that. Shehzad Saab, it's over to you. We are all yours now. थैंक यू वेरी मच कामरान साहब, थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह बड़ा अच्छा इवेंट चल रहा है जी। और मैंने अजीम साहब की, मैं ज़रा लेट था क्योंकि हमारा आईसीएमए का इवेंट यहाँ पे भी इस्लामाबाद में भी जो था, जो ग्रेजुएट्स पास हुए हैं और सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं, उनका हमने यहाँ पे एक सेरेमनी अरेंज की हुई थी। तो अभी मैं रास्ते में था जब इन्होंने कहा जी कि वो इवेंट क्लोज हो रहा है, कि मैंने कहा मैं यहीं कनेक्ट हो जाता हूँ। तो माशाल्लाह अजीम साहब का मैंने सुना, और उससे पहले इशफाक नाज साहब का। तो देखिए जी, हमारा पर्पस ही ये जितने इवेंट्स, टेक्निकल इवेंट्स हैं, स्पेशली टैक्स पर और इसके अलावा एससीसीपी मैटर्स में, तो इसमें सीपीडी एंड टीएसपीडी कमेटी हम एक कोलैबोरेशन के साथ करते हैं। नेशनल लेवल पे भी सारे वेबिनार भी और ट्रेनिंग्स भी और उसके अलावा वर्कशॉप भी, और उसका पर्पस ही यही है कि हमारे मेंबर जो हैं उनके जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी रिजॉल्व हो, और उसके साथ साथ वो उनकी प्रॉपर एक प्रोफेशनल गाइडेंस उन्हें मिले, और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो उसके साथ डिस्कशन हो, और जो उनके जो भी इश्यूज हैं बिफोर फाइलिंग वो रिजॉल्व खुद भी कर सकें। और अगर वो प्रैक्टिसिंग मेंबर्स हैं तो दे कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दिस सेमिनार एंड वेबिनार, एंड इन दिस वे दे कैन हैंडल देयर क्लाइंट्स इन ए बेटर वे। वो एक बेटर तरीके से उनको कर सकते हैं। तो इसमें मैं देख रहा था कि क्वेश्चन भी उनके बड़े अच्छे, लॉ के मुताबिक जो उनको एक असिस्टेंस मिल रही है। और जमशेद साहब, इशफाक नाज साहब और अजीम साहब और बाकी जितने हमारे पैनलिस्ट एंड स्पीकर्स हैं, और मैं सारे मेंबर्स को और केबीसी को और उसके साथ बाकी जो सीपीडी चेयरमैन है अजीम साहब, उनको कांग्रेचुलेट करता हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा ये किया। और इंशाल्लाह बाकी भी जो कंपनीज पे और अदर भी हैं वो भी हम मेंबर्स के लिए अरेंज करेंगे। विद दीज वर्ड्स जी, थैंक यू वेरी मच, और कांग्रेचुलेशन टू CPD committee and all the speakers and panelists. Thank you very much. Thank you, Malik Saab. So nice of you for the concluding remarks. So nice of you. Azim Saab like to add some more things to one or two lines. Azim Saab is over to you now. जी, खास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मलिक साहब का। मलिक साहब, आप मसरूफियत इस वक्त भी हमें अंदाज़ा हो रहा है, तो बहुत शुक्रिया फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर अस। इसके अलावा मैं इस सेमिनार के वेबिनार के हवाले से एक बात और कहूँगा हमारे एवरग्रीन फ़रोग अली नवीद साहब के लिए कि माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त मॉडरेशन की, इनका क्वेश्चंस जो इन्होंने वहाँ से पिक किए और बहुत ज़बरदस्त अंदाज से उनको फिर हमारे पैनलिस्ट को इन्होंने फॉरवर्ड भी किए। शुक्रिया फ़रोग आपका। और आखिर में बस ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी अगर मैं नाम नहीं लूँगा हमारे CPD MPD सेक्रेटेरिएट में MPD
ये डिपार्टमेंट का आसिम हुसैन साहब की जो काविशें जो मैं देख रहा हूँ पूरे से वेबिनार के दौरान भी, और इसके अलावा आसिम साहब का जो सपोर्टिंग स्टाफ है, तो बहुत शुक्रिया आसिम साहब, आपकी जो टीम है, मिस निसा, मिस हिरा, और इन्होंने भी बहुत एफर्ट्स किए हैं इसमें और रजिस्ट्रेशन के हवाले से, तो बहुत शुक्रिया। प्रेसिडेंट साहब आपका एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया, तमाम पैनलिस्ट और गेस्ट स्पीकर और एमओसी मॉडरेटर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। सर मैं Well, लास्ट जी थैंक यू At Thank the you. end, Thank you, Allah Hafiz. at the end, I Thank you would very like much, to sir. just एट द एंड Very सर much. अजीम साहब का बहुत शुक्रिया, हमारे लिए Yes. बहुत खुशी की बात है, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्होंने हमें वो गाइड भी कर रहे होते हैं, और उन्होंने ये इवेंट ऐसे क्रूशियल टाइम पे आज का वेबिनार अरेंज करवाया है जिसमें बहुत सारे हमारे मेंबर्स, स्टूडेंट्स, कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसका होगा। इट वाज वेल प्रिपेयर्ड, और यस बिल्कुल सही है आपकी कि रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हर वक्त होती है, हर जगह होती है। Thank you very much. Or at the end, I would like to add about one of the very finest wordings of one of the very great Urdu poet. तेरे मुगन्नी की हर सदा में तेरी ही खुशबू महक रही है, हर एक सुर में, हर एक लय में तेरी मोहब्बत चमक रही है, गवाह रहना वतन की मिट्टी अजीम है, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना। Thank you very much for your time. Inshallah, we will meet again with the same अल्लाह zeal and honor. So nice of you. Thank you. Allah Hafiz. अल्लाह Allah थैंक यू Hafiz. Thank you very अल्लाह much. हाफिज। Thank you very much. Thank you, Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. अल्लाह।